Hello and welcome. This is Deepak Tiwari. Today I am going to explain integers. This video is introductory part of integers. I am trying to clear the basic properties which we have to follow while solving the problems related to integers. Let me start the topic integers. Now, in the number terms, the term integer means integers होते कौन से? I said the collection of whole numbers and negative numbers is known as integers. whole numbers का उनके साथ साथ negative numbers का जो collection है उन्हें हम integers कहते हैं. So the numbers 1, 2, 3, 4, 5, okay, 0. If we considering 0 with the counting numbers, that is 0, 1, 2, 3, 4, 5 and so on, and to the left hand side of 0 we have the negative numbers, that is -1, -2, -3 and so on. Then these numbers which I have written here collectively known as integers. So 0 is also an integer. If we plot these numbers on number line, say in the center it is 0, then to the right hand side of the 0 the number marked positive numbers, that is 1, 2, 3, 4, 5 and so on, and to the left hand side of 0 it is -1, -2, -3, -4. Then to the left hand side of these numbers are the negative integers, and to the right hand side of the 0 these are positive integers. And here it is 0 is neither an positive integer and neither a negative integer, but it is also an integer. Okay, then the collection of whole numbers and the negative numbers is known as integers. We have given the examples here. Now the other part of this video is the operations on integers. Operations on integers, we have some properties also. We have some properties also for addition of integers. Properties of addition for integers. We have the first property, closure property. Then what is the closure property in terms of integers? The closure property says that the sum of two integers is also an integer. Means अगर हम दो integers को add करते हैं, उनका जो sum होता है तो उससे जो result हमको मिलता है वो भी एक integer ही होता है. Then for taking an example, then a plus b, if a and b are the two integers, then the sum of these integers is also an integer. For example, if we are taking 5 plus 4, 5 and 4 are the two integers, and when we going to add these integers we will get the sum 9. 5 plus 4 is equal to 9, and here 9 is also an integer. Then it is the closure property of an integer. Then the second property is commutative property of integers. Then commutative property, suppose we have the two integers a and b. Then if the closure property says that if we add these two integers with each other, like a plus b or b plus a, चाहे हम a में b plus करें चाहे b में a plus करें, the result will same. For example 3 plus 4. For example 3 plus 4, if we are going to add to sum 3 plus 4
or 4 plus 3 we will get the same result. Then it is the commutative property of an integer. Okay, in any manner if we are going to add these integers we will get the same result in every time. Then third one is associative property. Associative property. The name suggests associative. It means to associate the numbers or the integers in the different manners. Let me have an example. If A, B and C are the three integers, while we are going to add these integers, we will add like this. Now look, what does it means? The associative property means if we add a plus b plus c like the manner b, we associated here b plus c, these are the two integers, with each other. We have associated b and c at first and thereafter a plus b at first, मीन्स द रिजल्ट विल बी सेम. अगर हम b और c को पहले प्लस करके उसके बाद में a को प्लस करते हैं, या हम a और b को पहले प्लस करके उसमें c को बाद में प्लस करते हैं, तो रिजल्ट दोनों ही केसेस में सेम होगा. एग्जांपल देखते हैं. सपोज a 2 है, b 3 है एंड c 4 है. सेम एज यहाँ भी. व्हाट विल बी द रिजल्ट? 2 प्लस, लुक हमने 3 प्लस 4 को पहले ऐड किया, दैट इज 7. इधर हमने 3 प्लस 2 को पहले ऐड किया, दैट इज 5. देन रिजल्ट विल बी 7 प्लस 2 9 एंड 5 प्लस 4 9. द रिजल्ट विल be same. So it is the associative property of an integer in which we are going to add the different integers in the different manners. We will find the same result. Then the fourth property is additive identity. The fourth property is additive identity. What does the property says? Additive identity. The integer, we know that 0 is an integer. In such a way, if we add 0 with the other integer, 0 with the other integer, we will get the integer its own. ओके अगर हम 0 में किसी भी इंटीजर को ऐड करते हैं तो वो इंटीजर खुद ही उसका रिजल्ट होगा फॉर एवरी इंटीजर ए. ओके एग्जांपल, जैसे हम 7 में 0 को प्लस करें या 0 में 7 को प्लस करें तो रिजल्ट हमारा दोनों ही केसेस में 7 ही आएगा. 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर, इसीलिए 0 को हम एडिटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं इंटीजर के लिए. नाउ the fifth property is additive inverse. Additive inverse. Now look, for any integer a, suppose a is an integer, so if we add, okay, if we add the negative, okay, if we add the negative of this particular integer, we will get 0. एक पहला ही है कि हम वो इंटीजर a था, उस इंटीजर में निगेटिव इंटीजर, सेम उसी इंटीजर का निगेटिव मैंने ऐड किया तो हम 0 ही हमें रिजल्ट मिलेगा. सो द अपोजिट ऑफ एन इंटीजर a इज माइनस a. तो अपोजिट ऑफ एन इंटीजर, अपोजिट ऑफ एन इंटीजर a इज माइनस a. तो अगर क्वेश्चन भी बनता है कि व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ a, तो एडिटिव इनवर्स ऑफ a इज माइनस a. Okay, suppose if we have an integer minus a, we are taking the example here. Suppose if we have an integer minus a, then what will be the additive inverse of minus a? The additive inverse of minus a will be plus a, we will get result 0. In terms of additive inverse, we have to understand that we need answer 0, and if we are going to going for the solution as a 0, we will add, okay, we will add the inverse of an integer which we have given, that is minus a plus a is equal to 0. Okay, now let me move to the other part, that is the properties of signs in terms of addition. Now if we add the two integers with respect to their signs, then what
will be the different sign conversion. Look, if we are adding the two positive integer, the sign will remain same, that is positive. मीन्स कि अगर हम दो पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करेंगे तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो भी पॉजिटिव ही आएगा, मीन्स प्लस साइन उसके आगे कंसीडर करेंगे. देन इफ वी आर हैविंग if we are going to add the positive integer and the negative integer, it means कि हमें क्या ऑपरेशन करना है, प्लस माइनस माइनस करना है. ओके, क्या करना है, माइनस करना है. ये ऑपरेशन है, ठीक है, ये ऑपरेशन है. अगर दो इंटीजर्स को प्लस करना है तो प्लस प्लस दो इंटीजर प्लस ही होंगे. एक इंटीजर के आगे प्लस साइन लगाए, दूसरे के आगे माइनस साइन लगाए, तो हमें क्या करना है, ऑपरेशन माइनस यानी सब्ट्रैक्शन करेंगे. नाउ फर्स्ट इंटीजर में माइनस लगाए, सेकंड में प्लस लगाए, तो इस केस में भी हमको माइनस ही करना है. नाउ द फोर्थ वन इज, अगर हमारे पास दोनों इंटीजर्स के सामने माइनस माइनस लगे हैं तो उस केस में भी हमको प्लस करना है. ऑपरेशन हमारा प्लस ही होगा और साइन जो होगा इसका माइनस लगेगा. ठीक है, तो प्लस प्लस को अगर हम कर रहे हैं तो प्लस होगा यानी ऐड करना है और साइन रहेगा प्लस. अगर प्लस माइनस को कर रहे हैं तो यहाँ पर माइनस होगा ऑपरेशन और साइन क्या लगेगा मैं भी आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ. अभी आप इतना समझें कि अगर हम सेम साइंस के, लुक हियर, अगर हम सेम साइंस के इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं तो हमें प्लस ही करना होगा. ऑपरेशन क्या होगा, प्लस होगा. और अगर डिफरेंट साइंस के हिसाब से हम अगर ऑपरेशन कर रहे हैं तो वो हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा. एग्जांपल करते हैं पहले सेक्शन का. सपोज फर्स्ट वन, अगर हम 2 + 2 + 4 कर रहे हैं, ठीक है, दीज आर द पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, टू पॉजिटिव इंटीजर्स, देन वी विल गेट पॉजिटिव 6. हमने ऑपरेशन क्या किया, ऐड किया. देखिए 2 + 4 6 हुआ और साइन क्या लगेगा, प्लस का. सेकेंड, अगर हमारा पहला इंटीजर क्या है, प्लस में है, पॉजिटिव इंटीजर है, और दूसरा इंटीजर क्या है, निगेटिव है, दैट इज़ -2. तो हमारा जो ऑपरेशन होना चाहिए वो माइनस होना चाहिए. तो 4 में से 2 को आप माइनस करेंगे, आंसर आएगा 2. ठीक. थर्ड, अगर हमारा पहला इंटीजर माइनस में है, दूसरा इंटीजर प्लस में है, उस केस में भी हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे. तो चुपचाप 4 में से 2 को माइनस करिए, आंसर आएगा 2. बट इस केस में क्या होगा कि हमारे पास आंसर जो आएगा वो माइनस के केस में आंसर आएगा, माइनस के केस में. ठीक है. एंड फोर्थ वन, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जब आप दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो आपको ये याद रखना है कि उन दोनों नंबर्स में से, याद रखिए मैं नंबर की बात कर रहा हूँ, उन दोनों नंबर में जो बड़ा होगा उसके आगे का जो साइन लगा होगा हम वही साइन अपने सॉल्यूशन में लगाएंगे, आंसर में लगाएंगे. एग्जाम्पल के तौर पर मैंने इधर आपको क्या किया, -4 + 2, मैंने एक प्रॉब्लम ली, -4 + 2. इस केस में मैंने माइनस तो कर दिया, 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया, 2 होगा, लेकिन साइन मैंने क्या पुट किया, 4 2 के आगे माइनस, क्योंकि यहाँ पर 4 और 2 को अगर हम कंपेयर करते हैं, डोंट कंसीडर द साइंस हेयर. इफ़ वी आर कंपेयरिंग बिटवीन 4 एंड 2, 4 इज़ ग्रेटर देन 2. ठीक है, तो जो बड़ा नंबर होगा उसके आगे जो साइन होगा आपको कुछ नहीं सोचना है, बस आपके आंसर में वही साइन लगा देना है. एग्जाम्पल इसी का मैं एक और दे देता हूँ. -6 कर दिया, +4 कर दिया. इस केस में 6 और 4 में 6 बड़ा है और हमने इसीलिए प्लस माइनस क्या करते हैं, ऑपरेशन माइनस करते हैं. तो 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट, 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया, 2 आया. देन साइन कौन सा लगेगा, जो ग्रेटर नंबर है उसके आगे जो साइन लगा है वो साइन में यहाँ पे पुट कर दूंगा. ठीक. चलिए अब फोर्थ, माइनस माइनस, अगर हमारे पास दो इंटीजर हैं, इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं. ठीक है, तो आंसर हमें क्या करना है, ऑपरेशन क्या होगा, ऐड होगा. ठीक है, तो माइनस और माइनस दो जगह साइन है, हमको चुपचाप ऐड कर देना है और साइन क्या लगेगा हमेशा, माइनस का. ठीक है, तो इन दो केसेस में आपको माइनस के साइन लगाने होंगे. ठीक है, इसके बाद जब हम एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, तो जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे कि आपको साइन किसके हिसाब से लगाना है. नाउ द मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स, multiplication of integers. We have some other properties as well in respect to the multiplication of integers. The first property is closure property. The closure property. Okay,
Closure property, it means if we have the two integers a and b are the two integers, okay, then अगर हम इन दोनों इंटीजर को ऐड करते हैं, सॉरी मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा a इंटू बी वो भी एक इंटीजर ही होगा. सपोज 4 इंटू 2, these are the two integers a and b, we will get 4 to the 8 and 8 is also an integer. सेम एज जो प्रॉपर्टी मैंने आपको एडिशन की पढ़ाई बताई थी वही क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन की भी है. सेकेंड वन इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. Commutative property is also same as the property of addition. Now, if we have the two integers a and b, चाहे हम a में a को b से मल्टीप्लाई करें चाहे b को a से मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट दोनों का सेम ही आएगा. फॉर एग्जांपल 4 इंटू 2 चाहे 2 इंटू 4, द रिजल्ट विल 8 इक्वल टू 8, रिजल्ट आपका सेम आएगा. तो ये आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी. थर्ड वन इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. It is also same as the associative property in terms of addition of integer. If we have three integers a, b and c, if we multiplied a with the associative product of b and c, we will get same as the associative product of a and b with c. यानी कि अगर हम b और c को पहले मल्टीप्लाई करके बाद में a को मल्टीप्लाई करें, चाहे a और b को पहले मल्टीप्लाई करके c को मल्टीप्लाई करें, द आंसर विल रिमेन सेम. फॉर एग्जांपल 4 इंटू 2 इंटू 3, चाहे 4 इंटू 2 इंटू 3, लुक a4 b2 c3, a4 b2 c3. हमने क्या किया, एसोसिएट कर दिया, पहले 2 और 3 को फिर बाद में 4 और 2 को. आंसर देखते हैं. पहले हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जो ब्रैकेट में होता है उसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं. 3 2 जा 6, 4 2 जा 8 और 3, 6 4 जा 24, 8 3 जा 24. लो, द आंसर रिमेन्स सेम. तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हम किसी की भी किन्हीं भी दो इंटीजर्स को हम पहले मल्टीप्लाई कर लें, एसोसिएट करके प्रोडक्ट करते हैं, फिर तीसरे इंटीजर से प्रोडक्ट करते हैं, तो आंसर दोनों ही केसेस में सेम आएगा. Then the fourth property is multiplicative identity. Multiplicative identity क्या कहती है कि अगर आप किसी भी इंटीजर, सपोज a इज एन इंटीजर, किसी भी इंटीजर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम वही इंटीजर आपका रिजल्टिव आंसर होगा. ठीक, चाहे आप a इंटू बी करें चाहे 1 इंटू ए करें, आंसर आपका a ही आएगा दोनों ही केस में. ठीक है. देन द सिक्स्थ वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव. It is an important property. Distributive property, इसमें क्या है, a, b and c आपके 3 इंटीजर हैं. तो केस क्या बनता है, सपोज कि आपके पास a, b और c 3 आपके इंटीजर्स थे. ठीक है, उसमें b और c को पहले ऐड, ठीक है, को एसोसिएट कर लिया गया, पहले b प्लस सी और मल्टीप्लाई का साइन लगाया विथ a के साथ. इट मीन्स कि जो आपका बाहर इंटीजर है, कंसीडर करिएगा a इज द इंटीजर आउटसाइड द ब्रैकेट. इस केस में क्या होगा, दिस a विल बी मल्टीप्लाइड विथ b एट फर्स्ट, ऑल्सो दिस a इज मल्टीप्लाइड विथ c एज वेल. वी विल गेट द रिजल्ट. मैंने क्या बताया, a पहले b से मल्टीप्लाई होगा, चलिए a इंटू बी कर लिया, फिर ये क्या लगाया, प्लस का साइन लगाया. ओके, तो वहीं पे मैंने प्लस का साइन लगाया. फिर मैंने क्या बताया, a एक बार c से मल्टीप्लाई होगा, देन a इंटू सी. क्लियर. तो हमारा रिजल्ट कुछ इस तरीके से बनेगा. सेम एज यही केस अगर आपका माइनस के केस में होता तो इसमें भी यही होता. ठीक है, एक बार a b से मल्टीप्लाई हो रहा है, देन माइनस का साइन है, माइनस लगाया, फिर a c से मल्टीप्लाई. तो इधर डिस्ट्रीब्यूटिव इसका नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि हमने यहाँ पे a को, कंसिडर करिएगा, हमने यहाँ पे a को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है विथ b एंड c. एक बार b के साथ और एक बार c के साथ a को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है विद रिस्पेक्ट टू द साइन प्रोवाइडेड हेयर, विथ रिस्पेक्ट टू द साइन प्रोवाइडेड हेयर. ओके, नाउ व्हाट अबाउट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, सपोज a इज एन इंटीजर. ठीक है, a एक इंटीजर है और आपको क्या करना है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जब पूछे तो आपको उस इंटीजर का रेसिप्रोकल से उसको प्रोडक्ट कर देना है. ओके, सपोज a आपका अगर
एक इंटीजर है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 1/a। इन्वर्स का मतलब रेसिप्रोकल, इन्वर्स का मीन्स रेसिप्रोकल। b सपोज एक इंटीजर तो उसका 1/b होगा। ओके, अब सपोज 1/a एक इंटीजर है, क्या ये 1/a इंटीजर होगा? नो, क्योंकि ये फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन आपका इंटीजर नहीं होगा। ओके, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है कि इसमें आप उसको रेसिप्रोकल कर सकते हैं। नाउ सेम ऑन द डिवीजन, the properties of division. Okay, the first property is closure. Same closure property तीनों ही केसेस में सेम मिलेगी आपको। ओके, सपोज a and b, ओके, a and b आर द टू इंटीजर्स, देन चाहे हम a से b को या b को a से अगर हम डिवाइड करते हैं तो पॉसिबिलिटी क्या है? इट विल बी मे और मे नॉट बी एन इंटीजर। वो इंटीजर हो भी सकता है और इंटीजर नहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या है। फॉर एग्जांपल सपोज 6 डिवाइडेड बाई 4, ए आपका 6 है, बी आपका 4 है। ओके, तो इट मीन्स कि यहाँ पर 6/4, ठीक है, तो इसका अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो 3/2 इसका रिजल्ट आएगा। एंड 3/2 इज अ फ्रैक्शन, नॉट एन इंटीजर। ओके, नॉट एन इंटीजर होगा, ठीक है। तो इस केस में तो भाई ये पता चला कि ये इंटीजर नहीं है। सपोज हम कोई ऐसा एग्जांपल लेते हैं, सपोज 24 डिवाइडेड बाई 6, इधर ए 24 है, बी ए है, तो 24 डिवाइडेड बाई 6 वी विल गेट 6 4 या 20, तो 4 इज एन इंटीजर। इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी में कहा गया कि अगर वी विल डिवाइड, if we will divide a with b, a from b, we will get the result may be or may not be an integer। वो इंटीजर हो भी सकता है और इंटीजर नहीं भी हो सकता है। सेकंड प्रॉपर्टी पे हम देखें तो वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर a और b आपके दो इंटीजर्स हैं, देन जरूरी नहीं कि आपका जो a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाई a। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप a को b से डिवाइड कर रहे हो और दूसरे केस में b को a से डिवाइड कर रहे हो तो दोनों का रिजल्ट सेम आए, वो सेम नहीं आ सकता, ठीक है। फॉर एग्जांपल 35 डिवाइडेड बाई 7, क्या इधर 7 डिवाइडेड बाई 35 सेम होगा? नो इज़ नॉट इक्वल टू। ओके, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर कम्यूटेटिव विथ रिस्पेक्ट टू डिवीज़न, यानी डिवीज़न में जो इंटीजर्स हैं वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के आधार पर नहीं होते। हमने अभी इस बातों को जाना। नाउ द थर्ड वन इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि सपोज वी हैव 3 इंटीजर्स a b एंड c, इफ वी विल डिवाइड, okay, if we will divide a with the associative division with b and c, this will be not equal to if we divide a associated with b with c। अगर हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज 8, a है, b आपका 4 है और c आपका 2 है, ये इक्वल नहीं होगा इसके। कैसे देखते हैं? 4 divided by 2 we will get 2, 8 divided by 4 we will get 2 divided by 2, तो 8 divided by 2 we will get 4 which is not equal to 2 divided by 2 which is we will get 1। तो division of integers is not associative। आपने ये भी देखा कि associative प्रॉपर्टी के आधार पर अगर हम डिवीज़न को रखते हैं तो हमारा जो रिजल्ट है वो सेम नहीं आएगा। इट मीन्स हमने ये रिजल्ट फाइंड किया कि डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स इज नॉट एसोसिएटिव। ओके, और डिवीज़न बाय जीरो, किसी भी इंटीजर को, ओके, कंसीडर करिए किसी भी इंटीजर, सपोज a को आप डिवाइड कर रहे हो 0 से, तो इट इज़ मीनिंगलेस। ओके, तो आंसर आपका a ही आएगा। किसी भी इंटीजर को 0 से डिवाइड देने पर वो मीनिंगलेस निकलता है, आपका आंसर वही होता है। देन द फोर्थ प्रॉपर्टी इज डिवीजन बाय 1। डिवीजन बाय 1, सपोज a इज डिवाइडेड बाय 1 वी विल गेट a।
same as the integer. Okay, if a is divided by -1, we will get minus a. Okay, then we have completed the properties of integers. I have already mentioned you that this video is related to the introductory chapter or the introductory explanation regarding to the integers. We will try to discuss the related questions of integers in the next upcoming videos. Okay, now share as much as possible and like these videos. Okay, it is beneficial for you and the others as well. Okay, thank you and have a nice day.